Namaskar. I am Nandini Sahu, Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal, India. Today I am elated to share with you that we are going to the next phase of our comparative world literatures lecture series in the Hindi University, West Bengal. Within a period of 6 to 7 months since we introduced this very important lecture series, it has been creating ripples across the disciplines in the country. People from literature, language, even science and technology, and creative writers, people from anthropology, political science, history, folklore, oral traditions, are contributing to this lecture series in a big way. We are already having multiple lectures by our internal faculty members at Hindi University. 5 to 6 of them have already spoken on Kabir and on Bhakti traditions in Hindi literature. They have shared their research through the Comparative World Literatures lecture series with the world, and they are highly appreciated. And I am extremely proud of my colleagues at Hindi University. They are happy to contribute. They are voluntarily coming to me, discussing with me, and then they are contributing through their lectures. And in near future, we are planning to design our syllabus on comparative world literatures. Comparative world literatures is coming to Indian academia as a new discipline. Many universities have departments like world literatures, they have departments like comparative literatures, but when it comes to comparative world literatures, probably it's a very different and an alternative concept that we have conceptualized, that we are trying to promote, so that India can speak to the West through literature, through comparative literature. Indian Bhasha literatures, all the 24 languages and many folk languages and tribal languages can be translated through the comparative world literature pedagogy and through the experts of comparative literature with the help of efficient translators. And then they can be sent to the West, not just a few mainstream literatures, but the so-called marginal studies like Dalit studies, Bhakti literature, folk literature, tribal studies, women's studies, children's literature. So many of these subjects are being translated by the faculty of Hindi University. They are in the process of publishing those, and we are trying to create a collaboration with many international universities in the world through this lecture series. I'm also very glad to inform you here that Hujis Hindi University Journal of Interdisciplinary Studies is in the final phase of its publication. The editors and the review editors, they have done a very good job. They have collected interesting and important papers on comparative world literatures, because the first issue focuses on comparative literature. And the issue is under publication. Probably the July and December issue is under publication. I think after Puja we will do a journal release, and then we will make it open to the world, both offline and online versions of the journal. Comparative world literature is shifting from Eurocentrism to plurality. So this is what we talk about in this lecture series. Traditional comparative literature has long been accused of privileging European canons, and comparative world literature disrupts this. This series disrupts this very idea of foregrounding the non-Western literatures, especially Indian Bhasha literatures, be it Tamil, Telugu, Malayalam, Urdu, Sanskrit, Bangla, Odia, Hindi, or any language for that matter. So we are speaking in the vernacular voices, in the Bhasha voices and literature, and then we are talking about the epistemologies through this
comparative literature series. Then folklore, performative art forms, digital narratives, legitimate texts, oral texts, mythology. Many of these things are coming to our notice and our interest, and we are trying to address everything. The ethics of translation. Many of our speakers have already spoken on the ethics of translation through comparative world literatures. Translation is not just a linguistic exercise. Today, two external speakers have spoken about translating Bhakti literature and then translating Tagorean literature to many languages in the world. So it is not just a linguistic exercise, but it's a political and ethical negotiation of power. I have one research publication elsewhere. If you Google translation as a power by Nandini Sahu, you will find a paper where I am claiming through my research that the translator is extremely powerful because he or she brings home the culture. The responsibility, the accountability of the translator is to bring home the culture. So the discipline emphasizes translation as an epistemic bridge and not just as a market-driven necessity. There was a time when translation was more of market-driven because people needed to use those translations for their publicity material or many such things. But today, apart from machine translation and all those kinds of translation which are used for market-driven necessities, translation in the literature departments is coming up in a big way because we need to read each other to understand the human mind, and translation is the key. At least you will agree with me when I say that understanding the literature of another generation or another language or culture is pertinent, and for that translation is pertinent. And then through this comparative world literature lecture series, we are also talking about interdisciplinarity and the cultural studies like anthropology, history, philosophy, political science, digital humanities, and making translation and comparative literature very, very important interdisciplinary domains. These things have been our focus. Then we are critiquing the global English, and then we are talking about the many Englishes, through this lecture series, and the dominance of English as the medium of world literature is problematized by us. Comparative world literature insists on multilingual reading practices and of course through translation, and then it enables an epistemic justice for Bhasha literatures. I come from the English discipline. English is my language, but yes, I do not shy away from reading and writing many other Indian and world languages because for me, languages are like sisters. They are like rivers. They flow into each other. And then through this lecture series, we also try to emphasize the embodied knowledge and the lived contexts of very many literatures which have a universal approach. We talk about ecology, green studies, ocean humanities, we talk about the Girmityas, and then so many critical and important political and historical debates are also becoming our subjects of concern through this lecture series. Somewhere somebody talked about the institutional resistance through comparative literature, because comparative world literature struggles against the disciplinary conservation and conservatism. Universities used to cling to a certain tradition. As a folklorist, I have this experience. When I started designing courses on folk literature, there were questions like why folklore in a literature department? Because folklore is very performative. Probably it should go to anthropology or some discipline like that. Why English discipline should talk about folklore? I belong to a flexible school of thought of folklore which believes that folklore is not something to romanticize and museumize out there. Rather, we should bring folklore to the university tables through comparative literature, through translation, and this is what we are trying to do at Hindi University, West Bengal. And then the 20th century relevance of comparative literature is in the Anthropocene. We talk about the human world and the one animal worlds together. Nature
and humanity together. And the contribution to this concept of Hindi University is through our propagation of a unique institutional vision. And probably we are one of those rarest of the rare universities in the world which is dedicated to the promotion of Hindi and other languages through the interdisciplinary approaches. So that is how we are trying to create a vision beyond linguistic boundaries. Bhasha-centric paradigms are our subjects. My faculty members, the colleagues in Hindi University, they are discussing the Bhasha-centric paradigm shift through their lectures. Please listen to their lectures. I have shared some of them in the social media, and rest others I am going to share in our newsletter. We already have 2 newsletters, January to March and then April to June. 2 newsletters have already been posted on social media and in our website. Please go through them so that you find a clear idea about how the internal faculty as well as the best brains of the country are contributing to Hindi University West Bengal. And then we are trying to do some sort of curriculum innovations. Hindi University is pioneering the modules on comparative literature through indigenous studies, Indian knowledge systems, and we are trying to set benchmarks for the future generations to come. For us, translation is not just a theory, it's a part of our theory and praxis. Hindi, Bangla, tribal languages, many languages we are dealing with, and then caste, gender, ecology, migration, social justice. These are some of the subjects that we try to address. We are doing witness literature, as Nathan Godimer would say, that in the method of social change, the writer has to play the role of a witness. Like in the court of law, the witness plays an important role. Similarly, to create a positive and a more inclusive society, the writer has to play the role of a witness. So we are doing our research and publication in witness literature. We are having dialogues with Northeast and other tribal cultures, the marginalized cultures, and we are trying to create international collaborations through our research. And then we are trying to decolonize leadership as an institution in West Bengal, a region with deep tradition of comparative thinking through Tagore, Aurobindo, Bankim Chandra, Sharat Chandra Chattopadhyay, Ashapurna Devi, and other such important writers. Hindi University is trying to decolonize the intellectual leadership in comparative world literature, and we are trying to create a better and a more positive society through this comparative world literature lecture series as well as our journal Hujis. I'm looking forward to collaborating, to working with many of you. Thank you very much for giving your attention to the comparative world literature lecture series of Hindi University. Namaskar. नमस्ते, मैं डॉक्टर विजेता दुबे, हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी और अनुवाद विभाग की शिक्षिका। तुलनात्मक विश्व साहित्य पर हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम के द्वारा कई वेबिनार आयोजित करवाए गए और आज इस वेबिनार सीरीज का हिस्सा बनकर मुझे हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरा विषय है तुलनात्मक विश्व साहित्य, दशा और दिशा। सबसे पहले मैं भारतीय भाषाविद, आलोचक और हिंदी के कोशकार डॉक्टर हरदेव बाहरी के उस कथा का जिक्र करना चाहूंगी जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी भाषा में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबल नगर के निवासियों ने मिलकर एक मीनार बनाने की योजना बनाई। उनमें एक भाषा का व्यवहार होता था। काम शुरू हुआ तो सामान मांगा जाता, हाजिर हो जाता। कार्य में जो प्रगति होती उसका लेखा जोखा कर लिया जाता और आगे का काम कैसे होगा, कोई अड़चन तो नहीं होगी, सारी सामग्री तैयार है या कहीं कमी है इत्यादि बातों पर विचार विनिमय कर लिया जाता और निर्माण कार्य बहुत तेजी से बढ़ता जाता। मीनार ऊंचा होता गया और आसमान को छूने लगा। तब
अल्लाह मियाँ को आशंका हुई कि ये लोग तो मेरे दर्जे तक पहुंच जाएंगे। उसने सब में अलग अलग भाषा भर दिया। अब क्या हुआ? राजमिस्त्री पत्थर के ढोंगे मांग रहे हैं, तब सब एक दूसरे का मुंह ताकते खड़े हैं। कोई चूना गारा मांग रहा है, कोई पाड़ बांधने के बांस और रस्सी के लिए चिल्ला रहा है, कोई बेलचे या परुए की फरियाद कर रहा है, पर कोई किसी की सुनता समझता ही नहीं। काम ठप हो गया। लोग मिलते तो हैं, विचार विमर्श, कोई परामर्श नहीं हो पाता। आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अंततः सारी जाति का नाश हो जाता है। इस उदाहरण से एक बात तो स्पष्ट है कि भाषाई अभाव में मतभेद उत्पन्न होते हैं। विशेषकर आज के उत्तर आधुनिक वैश्वीकरण के युग में विभिन्न संस्कृतियां यदि अपनी भाषाई परंपरा को ही महत्व देते हुए अपनी ढपली अपनी राग गाएंगे, तो इससे विविध संस्कृतियों के बीच एवं विविध जातियों यानी कि भाषाई जाति के बीच वैमनस्य, संघर्ष और सहिष्णुता उत्पन्न होगी। इसका समाधान हमें तुलनात्मक विश्व साहित्य के अंतर्गत नजर आता है, जिसके जरिए भूपटल पर विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों को एक ही कुटुंब के भीतर बांधा जा सकता है, जो विश्व शांति एवं समृद्धि का प्रतीक है। यदि सभी अपनी अपनी भाषा पर ही ध्यान देंगे तो अलग अलग विकसित होंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि तुलनात्मक अध्ययन के जरिए इस मतभेद को पनपने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। यदि व्यक्तिगत तौर पर भाषाई वर्चस्व की रूढ़िवादी परंपरा विद्यमान रही तो शांति रूपी इमारत का निर्माण करने से हम चूक जाएंगे। अब मैं उन बिंदुओं को स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ जिन बिंदुओं पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, तुलनात्मक विश्व साहित्य दशा और दिशा। फिर है तुलनात्मक विश्व साहित्य का उद्भव और विकास, विश्व साहित्य का स्वरूप, तुलनात्मक विश्व साहित्य का महत्व, हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य के बीच संबंध, हिंदी साहित्य के विकास में तुलनात्मक साहित्य का योगदान, तुलनात्मक विश्व साहित्य की चुनौतियां एवं समाधान, और अंत में है निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अंग्रेजी के कंपैरेटिव लिटरेचर को हिंदी में तुलनात्मक साहित्य के रूप में जाना जाता है। तुलनात्मक साहित्य
साहित्य का एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों, भाषाओं, संस्कृतियों, साहित्यिक परंपराओं के साहित्य का आपस में तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य साहित्य के सार्वभौमिक तत्वों को समझना और विभिन्न साहित्यिक रचनाओं के बीच अंतर संबंधों को उजागर करना होता है। जब इसे विश्व तुलनात्मक साहित्य के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह विश्व के विविध साहित्यिक परंपराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसमें भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर मनुष्य के सार्वभौमिक अनुभव, विचार, संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक साहित्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध लेखक, अनुवादक इंद्रनाथ चौधरी ने लिखा है, तुलनात्मक साहित्य अंग्रेजी के कंपैरेटिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। विदेश में इसे सांस्कृतिक अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। तुलनात्मक साहित्य एक से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य का अध्ययन है और तुलना इस अध्ययन का मुख्य अंग है। तुलनात्मक विश्व साहित्य साहित्य को सीमाओं में नहीं बांधता, बल्कि इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर देता है। यह न केवल साहित्य को समझने, बल्कि मानव सभ्यता के सार्वभौमिक मूल्यों को जानने का एक सशक्त माध्यम है। यह अध्ययन विधा मानवता की साझा अनुभूतियों, संघर्षों और उपलब्धियों को एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। विश्व साहित्य का आशय है समस्त विश्व में लिखे गए महत्वपूर्ण साहित्य का अध्ययन, जैसे शेक्सपियर, होमर, कालिदास, गेटे, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि। तुलनात्मक साहित्य में साहित्य का आपस में तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन होता है, जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस और पश्चिम के मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की तुलना, जबकि तुलनात्मक विश्व साहित्य में दोनों का संयोजन होता है। अब मुख्य बिंदु के अंतर्गत पहला जो बिंदु है वह है तुलनात्मक विश्व साहित्य का उद्भव और विकास। 18वीं शताब्दी तक साहित्य की तुलनात्मक दृष्टि का कोई औपचारिक स्वरूप नहीं था। विद्वान विभिन्न भाषाओं का अध्ययन तो करते थे, परंतु उसे तुलनात्मक साहित्य का नाम नहीं दिया गया था। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के साहित्य का पारस्परिक अध्ययन होता था, लेकिन उसका उद्देश्य भाषाई या सांस्कृतिक श्रेष्ठता सिद्ध करना था। साम्राज्यवादी शक्तियां एक भाषा, एक राष्ट्र के साथ साथ एक साहित्य की धारणा को साकार करने में हठपूर्वक संलग्न थी। इस संबंध में हनुमान प्रसाद शुक्ल लिखते हैं, समूचे यूरोप की आधार प्रेरणा ग्रीक तथा मध्य युग की साझी भाषा लैटिन होने के बावजूद फ्रांस फ्रेंच भाषा, फ्रेंच साहित्य, इंग्लैंड अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, स्पेन स्पेनिश भाषा, स्पेनिश साहित्य आदि का दुर्निवार्य आग्रह बढ़ता चला था। हद तो यहाँ तक थी कि इंग्लैंड जैसे देश अपनी ही आयरिश, वेल्श, स्कॉटिश जैसी भाषाओं और उनकी राष्ट्रीयता को पोषण देने वाले साहित्य को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इन्हीं कथित राष्ट्रीय साहित्य की प्रतिक्रिया में यूरोप की शांति और एकता के लिए तुलनात्मक साहित्य क्रमशः विकसित हुआ। तुलनात्मक साहित्य का औपचारिक जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। फ्रांस में 1827 ईस्वी में लिटरेचर कंपेयर शब्द पहली बार बेल्जियम के विद्वान जीन जैक्स एम्पियर ने प्रयोग किया। इस काल में फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक साहित्य को अकादमिक अनुशासन के रूप में मान्यता मिलने लगी। इस काल में हिप्पोलाइट टेन, मैथ्यू आर्नल्ड, गेटे इत्यादि का तुलनात्मक साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक साहित्य ने एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप लिया। 1950 में अमेरिका में अमेरिकन कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ACLA की स्थापना हुई।
इस समय तुलनात्मक साहित्य का फलक केवल साहित्यिक विषयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक जैसे अनुशासनों से भी इसका संपर्क हुआ। इस काल में रेने वेलेक, क्लाउडियो गुइलेन, हेनरी रेमक जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तुलनात्मक साहित्य ने पश्चिम के साहित्यिक वर्चस्व को चुनौती दी और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ हुआ। एडवर्ड साइड का ओरिएंटलिज्म, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का सबल्टन स्टडीज जैसे आंदोलनों ने तुलनात्मक साहित्य को एक नई दिशा दी। आज 21वीं शताब्दी में तुलनात्मक साहित्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया, अनुवाद, अध्ययन, फिल्म, लिंग विमर्श यानी जेंडर स्टडीज जैसे नए क्षेत्रों से जुड़ चुका है। अब मुख्य बिंदु के अंतर्गत है विश्व साहित्य का स्वरूप। विश्व साहित्य का सबसे प्रमुख स्वरूप इसकी अंतरराष्ट्रीयता है। यह एक विशेष राष्ट्र या भाषा तक सीमित नहीं रहता, जैसे होमर का इलियड यूनान का होते हुए भी संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की देन होते हुए भी विश्व मंच पर प्रतिष्ठित है। विश्व साहित्य विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। इसमें पाश्चात्य एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी आदि संस्कृतियों के साहित्य समाहित होते हैं, जैसे गोरकी रूस, प्रेमचंद भारत, पाब्लो नेरुदा चिली सभी विश्व साहित्य का हिस्सा है। विश्व साहित्य में विभिन्न साहित्यिक परंपराओं का परस्पर संवाद और समन्वय देखने को मिलता है। जैसे टैगोर की रचनाओं में भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य मानवतावाद का अद्भुत समन्वय है। विश्व साहित्य मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों यथा प्रेम, करुणा, शांति, स्वतंत्रता, न्याय का वाहक है। टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, कबीर, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लेखकों के साहित्य में ये मूल्य उजागर होते हैं। विश्व साहित्य में विभिन्न की सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ साथ मानवीय भावनाओं की समानता का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। गरीबी पर प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में सांस्कृतिक अंतर होते हुए भी संवेदना समान मिलती है। विश्व साहित्य केवल किसी विशेष समय की सीमा में नहीं बनता, बल्कि कालातीत होता है। शेक्सपियर, कालिदास, तुलसीदास, गोरकी, प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। यह मनुष्य के सुख दुख, संघर्ष, प्रेम, राजनीति, समाज, मनोविज्ञान सभी पक्षों को उभारता है। जायसी के पद्मावत में जहां भारतीय लोक जीवन विद्यमान है, तो सर्वेंटेस के डॉन क्विक्सोट, मिगुएल डे सर्वेंस में स्पेनिश जीवन का चित्रण है। विश्व साहित्य मानव जाति की साझी विरासत है। यह न तो किसी भाषा में सीमित है, न किसी राष्ट्र में, बल्कि यह पूरी मानवता के हृदय और विचारों का दर्पण है। अगले तुलनात्मक विश्व साहित्य। तुलनात्मक विश्व साहित्य का महत्व। तुलनात्मक विश्व साहित्य का महत्व केवल साहित्यिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सांस्कृतिक, दार्शनिक और सामाजिक चेतना की भी संवाहक है। यह अध्ययन न केवल विभिन्न देशों के साहित्य को एक दूसरे के सापेक्ष देखने का अवसर देता है, बल्कि मानवता के साझा मूल्यों को समझने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। तुलनात्मक साहित्य से हम विभिन्न राष्ट्रों की साहित्यिक परंपराओं, संवेदनाओं और दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं। यह हमारी सोच को सीमित राष्ट्रवाद से निकालकर विश्व मानवतावाद की ओर ले जाता है। इस संदर्भ में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात पंक्ति आती हैं, नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। विविधता में एकता का संदेश देने वाले कवि रविंद्र के इस भारतवर्ष में
अंतः प्रादेशिक साहित्य के आदान प्रदान का इतिहास अत्यंत कुतूहल जगाने वाला है। इन पंक्तियों के अर्थ को यदि विश्व स्तर पर समझा जाए तो विश्व साहित्य को समग्रता में जानने के लिए आवश्यक है कि केवल अपने देश की भाषा या साहित्य का अध्ययन न करके दूसरे देशों की भाषा एवं साहित्य का भी अध्ययन किया जाए। तुलनात्मक विश्व साहित्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समन्वय है। साहित्य के माध्यम से एक देश दूसरे देश की संस्कृति, परंपरा, रीति नीति को समझ सकता है। भारतीय साहित्य में प्रेमचंद और फ्रांसीसी साहित्य में जॉन पॉल सार्त्र के विचारों में मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति को जोड़कर समझा जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन यह दिखाता है कि प्रेम, करुणा, सत्य, स्वतंत्रता जैसे मूल्य केवल किसी एक देश की धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के साझा मूल्य हैं। इस अध्ययन से नई आलोचना पद्धतियों का विकास हुआ, यथा मार्क्सवादी आलोचना, नारीवादी आलोचना, उपनिवेशवादी आलोचना, उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना। तुलनात्मक साहित्य अनुवाद साहित्य को बढ़ावा देता है। इससे छोटे और सीमित भाषाओं के साहित्य भी वैश्विक पटल पर पहुंच पाए हैं। शकुंतला का जर्मन अंग्रेजी में अनुवाद कर कालिदास को विश्व मंच पर स्थापित किया गया। तुलनात्मक विश्व साहित्य में विविध आयामों का विस्तार देखने को मिलता है। हमें दिखाता है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, ऐतिहासिक दस्तावेज, मनोवैज्ञानिक अध्ययन और दार्शनिक विमर्श का माध्यम है। मुख्य बिंदु के अंतर्गत अगला जो बिंदु है हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य के बीच हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य का संबंध अत्यंत गहरा, व्यापक और बहुआयामी है। दोनों परस्पर प्रभाव, आदान प्रदान और साझी मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। विश्व साहित्य का हिंदी साहित्य पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। हिंदी साहित्य केवल भारतीय परंपराओं में सीमित नहीं रहा बल्कि उसने विश्व साहित्य से प्रेरणा पाकर अपने स्वरूप को समय समय पर नया विस्तार और आधुनिकता प्रदान की है। विशेषकर आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का विकास विश्व साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और आंदोलनों से गहरे रूप से प्रभावित रहा है। रोमांटिक आंदोलन के अंतर्गत वर्ड्सवर्थ कीट्स से हिंदी में छायावाद विकसित हुआ। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का प्रभाव प्रेमचंद में दिखता है। भारतीय प्रगतिशील आंदोलन सोवियत साहित्य और गोरकी से प्रभावित एवं प्रेरित होकर हिंदी में प्रेमचंद, नागार्जुन, यशपाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि लेखकों द्वारा विकसित हुआ। मुक्तिबोध की कविताओं में अस्तित्ववाद की छाया देखी जा सकती है। समकालीन साहित्य में नारीवाद और दलित चेतना का उभार भी विश्व साहित्य की वैश्विक प्रवृत्तियों से जुड़ा है। विश्व साहित्य की नई लेखन शैली, प्रयोगवादी दृष्टि और नवाचार ने हिंदी साहित्य के शिल्प को बदला। शेक्सपियर, ब्रेख्ट, टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों की शैली ने हिंदी के नाटक, कहानी और उपन्यास में नई जीवंतता भरी। एक्टिंग टेक्निक, डायलॉग, शिल्प, फ्लैशबैक, मोनोलॉग जैसी विश्व साहित्य की तकनीकें हिंदी साहित्य में प्रयुक्त हुई। यह प्रभाव एक तरफा नहीं है। हिंदी साहित्य ने भी विश्व साहित्य को समृद्ध किया है। प्रेमचंद, मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रेणु जैसे रचनाकारों की कृतियां विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर विश्व भर के साहित्यकारों के बीच चर्चित रही हैं। प्रेमचंद के गोदान, रेणु के मैला आंचल जैसे उपन्यास ग्रामीण यथार्थ के वैश्विक उदाहरण बने हैं। रामचरितमानस, गीतांजलि, गोदान, कामायनी आदि रचनाएं अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, जापानी आदि में अनुदित हुई और वैश्विक पाठकों तक पहुंची। भक्ति साहित्य, कबीर, सुर, तुलसी ने वैश्विक स्तर पर भक्ति और मानवीय प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप को उजागर किया।
मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, फिजी, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में हिंदी साहित्य की उपस्थिति बहुत प्रबल है और वहां के साहित्यकार हिंदी में साहित्य सृजन कर तो विश्व साहित्य का हिस्सा बन चुका है। प्रवासी हिंदी साहित्य ने विश्व साहित्य को विविधता और संस्कृतियों के समन्वय का अद्भुत दृष्टिकोण दिया है। गोपीनाथ नारायण मिश्र मॉरिशस, विश्वनाथ त्रिपाठी फिजी जैसे प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाया। हिंदी साहित्य ने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, उपनिवेशवादी विरोध, लोक चेतना जैसे विचारों के माध्यम से विश्व साहित्य को नया वैचारिक फलक दिया है। हिंदी साहित्य का विश्व साहित्य पर प्रभाव उसके मानवीय मूल्य, सामाजिक यथार्थ, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम हिंदी साहित्य के विकास में तुलनात्मक साहित्य के योगदान को जानने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक साहित्य ने हिंदी साहित्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। साथ ही हिंदी लेखकों और पाठकों को विश्व साहित्य से जोड़कर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों की तुलना करते समय तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, किंतु तुलनात्मक साहित्य को अलग अनुशासन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तुलसीदास की तुलना कबीर, सूरदास से की गई, पर यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं तक सीमित था। प्रेमचंद ने तुलनात्मक दृष्टि को अंतरराष्ट्रीय आयाम दिया। प्रेमचंद पर रूसी लेखक गोर्की और टॉल्स्टॉय का प्रभाव रहा। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थवाद और मानवता का वह स्वरूप दिखा जो विश्व साहित्य से संवाद करता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद हिंदी में तुलनात्मक दृष्टिकोण तेजी से विकसित हुआ। विश्व साहित्य, विशेषकर सोवियत साहित्य के साथ हिंदी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ हुआ। यशपाल, नागार्जुन, महादेवी वर्मा ने विश्व साहित्य की प्रेरणाओं से हिंदी साहित्य को जोड़ा। आधुनिक आलोचना काल यानी 1950 से 1980 में तुलनात्मक साहित्य ने एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप लिया। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने तुलनात्मक दृष्टिकोण को विधिवत स्वरूप दिया। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य, दर्शन, संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। तुलनात्मक साहित्य अब केवल रचनाओं की तुलना तक सीमित न होकर समाज, संस्कृति और विचारधारा के स्तर पर विस्तार को प्राप्त हुआ। समकालीन युग यानी 1980 के बाद से अब तक में स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, उपनिवेशवाद, अनुवाद, अध्ययन, लोक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन सामने आया। विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक साहित्य स्वतंत्र अनुशासन बन गया है। तुलनात्मक अध्ययन के संस्थागत विकास के संदर्भ में अगर देखें तो भारतीय विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक अध्ययन अभी प्रारंभिक स्थिति में है। जादवपुर विश्वविद्यालय BA, MA, MPhil, PhD सभी स्तरों पर, मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं अनेक विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन हो रहा है। हिंदी साहित्य में तुलनात्मक साहित्य का विकास सतत और जीवंत प्रक्रिया है। प्रारंभिक काल में यह केवल कवियों की तुलना तक सीमित था, पर आज यह साहित्य, संस्कृति, समाज और वैश्विक संदर्भों में हिंदी साहित्य का व्यापक अध्ययन बन चुका है। तुलनात्मक के बिना हिंदी साहित्य की वर्तमान प्रगतिशीलता, आधुनिकता और वैश्विक उपस्थिति की कल्पना अधूरी है। अब हम तुलनात्मक विश्व साहित्य की चुनौतियों एवं उसके समाधान के बारे में जानेंगे। तुलनात्मक साहित्य का उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्कृति और साहित्य के बीच संवाद स्थापित करना, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करना सरल नहीं है।
तुलनात्मक विश्व साहित्य के अध्ययन में अनेक जटिल और बहुआयामी चुनौतियां उपस्थित होती हैं, जो इस अनुशासन को रोचक होने के साथ साथ कठिन भी बनाती हैं। तुलनात्मक अध्ययन में अनेक बार उस भाषा की समझ का अभाव एक बड़ी चुनौती बन जाता है। उदाहरण स्वरूप, रूसी साहित्य के महान लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की कृतियों को पढ़ते समय यदि मूल रूसी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो हम केवल अनुवादित रूप में ही उसे ग्रहण करते हैं, जिससे मूल शैली, भावाभिव्यक्ति और सांस्कृतिक लय का क्षरण हो जाता है। इसी तरह सूरदास के पदों का अंग्रेजी अनुवाद उनकी भक्ति और रस की गहराई को शायद ही उस स्तर पर संप्रेषित कर पाए, जैसा मूल ब्रज भाषा में होता है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। तुलनात्मक अध्ययन में जब हम जापानी हाइकू और हिंदी के दोहा परंपरा की तुलना करते हैं, तो दोनों के पीछे छिपे सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न होते हैं। हाइकू प्रकृति की लघु अभिव्यक्ति है, तो दोहा सामाजिक और दार्शनिक संदेशों का सार है। यदि संस्कृति की समझ नहीं हो, तो तुलनात्मक अध्ययन सतही रह जाता है। मीरा की भक्ति और जापानी कवयित्री ओनो नो कोमाची की प्रेमपूर्ण कविताओं की तुलना करते समय सांस्कृतिक भिन्नता को समझना अनिवार्य है, अन्यथा तुलनात्मकता का उद्देश्य विकृत हो जाता है। तुलनात्मक विश्व साहित्य का एक बड़ा संकट यह है कि इसके केंद्र में अभी भी पश्चिमी साहित्य और विचारधारा का दबदबा है। विश्व साहित्य में होमर, शेक्सपियर, मिल्टन, टॉल्स्टॉय, डिकेंस जैसे लेखकों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद, टैगोर जैसे साहित्यकारों को सीमित संदर्भ में देखा जाता है। हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद के गोदान की तुलना फ्रांसीसी उपन्यासकार गुस्टाव फ्लाबियर के मैडम बोवारी से करते समय अक्सर गोदान को कृषि प्रधान देश का पिछड़ा साहित्य मान लिया जाता है, जबकि वह ग्रामीण भारत की आत्मा का दस्तावेज है। अधिकांश तुलनात्मक अध्ययन में पाश्चात्य आलोचना के उपकरण जैसे फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। कई बार ये उपकरण भारतीय साहित्य पर लागू नहीं होते। भारतीय भक्ति साहित्य में रस और भक्ति का गहरा संबंध है, जिसे पाश्चात्य स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से पूरी तरह समझना असंभव है। तुलनात्मकता के लिए स्वदेशी सिद्धांतों का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत आदि। वैश्वीकरण ने भाषा और साहित्य को आम ग्लोबल कल्चर की तरफ मोड़ दिया है। परिणाम स्वरूप लोक साहित्य, जनजातीय साहित्य जैसे स्वरूप तुलनात्मक अध्ययन से बाहर हो रहे हैं। एक निराशाजनक बात यह भी है कि अनुवाद कार्य के समान तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में विशेष उत्साह नहीं दिखाया जाता है। भारत और अन्य विकासशील देशों में तुलनात्मक साहित्य की शोध सामग्री सीमित है। विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक साहित्य के पाठ्यक्रम या तो अधूरे हैं या उनमें पश्चिमी साहित्य का ही अधिक समावेश है। तुलनात्मक विश्व साहित्य की ये चुनौतियां हमें यह सोचने पर विवश करती हैं कि तुलनात्मकता के नाम पर पश्चिम का अनुकरण न किया जाए, बल्कि विश्व के प्रत्येक कोने से साहित्यिक प्रवाहों को उचित स्थान दिया जाए। साहित्य के अध्ययन में खुला और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर अनुवाद के कार्य को और प्रमाणिक बनाकर बहुभाषिकता को प्रोत्साहित कर विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक साहित्य का व्यापक पाठ्यक्रम विकसित कर तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में सहायक हो सकता है। तुलनात्मक विश्व साहित्य में सुधार के लिए एक आवश्यक बात यह भी उभर कर सामने आई है कि तुलनात्मक साहित्य अब तक अपनी उत्कृष्टता पर पहुंच नहीं सकता जब तक किसी भी देश की स्थानीय भाषाओं में कमजोर पक्ष विद्यमान रहेंगे। इसलिए भारत में स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाकर ही हम अपने राष्ट्र, अपने देश को एक सम्मानजनक स्थान दे पाएंगे।
इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि भारतीय प्रशासन में विदेशी भाषाओं का प्रयोग तो किया जाए, किंतु उनके प्रयोग से हमारी स्थानीय भाषाओं को कोई क्षति न पहुंचे। इस दिशा में हमारी केंद्रीय सरकार ने भी हाल ही में 6 जून 2025 में ही भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया। यदि तुलनात्मक विश्व साहित्य भाषा, संस्कृति, साहित्यिक परंपरा और स्थानीयता के मूल तत्वों को साथ लेकर आगे बढ़े, तो यह वैश्विक संवाद का सशक्त माध्यम बन सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने ठीक ही कहा था, तुलनात्मकता का उद्देश्य केवल तुलना नहीं है, वह साहित्य में मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों की खोज है। अब निष्कर्ष की ओर मैं बढ़ निष्कर्षतः तुलनात्मक साहित्य को मूलतः साहित्यों का गणतंत्र कहा जा सकता है। आज तुलनात्मक अध्ययन अनुशासन की उस सैद्धांतिकी की तलाश अनिवार्य है जो भारतेतर विचारकों और पश्चिमी चिंतन को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय मनीषा के अंतर्मंथन से निकली हुई मौलिक अवधारणाओं के सहारे विकसित हो। अंततः मैं इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि भाषाई विविधता चाहे जिस स्तर पर भी हो, किंतु भावात्मक एकता ही सार्वभौमिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। यानी भाषा अनेक, भाव एक। In short, I want to say that comparative world literature is basically the constitution of all the languages prevails in the world, which promotes equality, justice, fraternity, and sustainability among different linguistic groups and dialects. अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सर नंदिनी साहू मैडम को, जिन्होंने मुझे इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। हिंदी एवं अनुवाद विभाग की कोऑर्डिनेटर पारुमिता दास मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे ऑफिस के कर्मचारी और तकनीशियन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं एवं साहित्य प्रेमियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।